Dear student friend follower, in today's session, you people will be learning about mental lexicons. You will be learning about mental lexicon. You will be learning lead and universal grammar. You'll be learning about behaviorism and innateness, innate theories, Piaget's theory, Piaget's cognitive theory. So after that, you'll be learning about the 4 stages of language learning according to the Jean Piaget. Jean Piaget, he has defined 4 stages of the language learning. According to Jean Piaget, if a child learns language, he passes through the 4 stages. And according to Jean Piaget, the first stage is sensory motor stage, and the next stage, very next stage, sensory motor stage to next stage is pre-operational stage. Then he say there is a concrete operational stage, and then he say formal operational stage. We'll be talking about this as well. So let's talk about the mental lexicons. So Fozia, what do you think, what is mental lexicons? I'm not gonna show it to you. So you just tell me your idea. What is mental lexicons? If you know something about. No, sir. Please have explained to Okay. me. Mental lexicons. Mental lexicons is also known as a mental dictionary. What you have inside your mind, it is known as mental lexicons. Maybe you have other ideas related to your mental lexicons will be different from my mental lexicons. Mental lexicons mean that information you have stored related to the related to dictionary. So whatever you have concept, idea, meanings, dictionary, substitutional words related to one object, it is mental lexicons. For example, I say tree. Once I say tree, there will be number of mental lexicon related to trees. Trees, something related to fruit, something animals they eat. Tree, something stick. It is used for stick. It is related to pastures. It is related to a kind of greenery. It is related to field. It is related to cattle. It is related to other animals. It is related to birds. So idea will automatically coming in your mind. So these are the mental lexicons. मैं जस्ट आपको एक वर्ड बताऊं तो आप उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो चेन्स जो हैं आपके माइंड में बनती जाएं उससे रिलेटेड, और ये हर इंसान के डिफरेंट होते हैं मेंटल लेक्सिकॉन्स. आपके डिफरेंट है, मेरे पास डिफरेंट है. एवरी बॉडी इज हैविंग डिफरेंट मेंटल लेक्सिकॉन्स. तो मेंटल लेक्सिकॉन से मतलब क्या हुआ? मेंटल लेक्सिकॉन से मतलब ये हुआ कि सम वर्ड्स आर एक्टिव. मतलब जो वर्ड्स आपके माइंड में एक्टिव हैं वो क्या हैं? आपके मेंटल लेक्सिकॉन्स हैं. एक लफ्ज़ बोला जाए और उससे रिलेटेड बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं हम खुद बना लेते हैं. हम थोड़ी सी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो यूजुअली इसे कहा जाता है कि मेंटल लेक्सिकॉन मीन related to the words dictionary you have in your mind, substitutional word, links of the words, relation of the words, and words with another words with other meanings. तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन ऑफ लेक्सिकॉन क्या है? A book containing an alphabetical arrangement of the word in a language and their definition. Vocabulary of the language, an individual speaker, a group of speakers are the subject. यानी जो वोकेबलरी ऑफ लैंग्वेज आपके माइंड में है वो आपके मेंटल लेक्सिकॉन्स हैं. आपको मैं मतलब अभी पूछता हूँ कि फौजिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? तो आप मुझे क्या बताएंगी? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्शन? या मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग, मैं आपसे बुक कहता हूँ, मैंने आपसे बुक. Prediction meaning that if you have some knowledge, some forecasting forecasting about prophecy. future.
about future जजमेंट, prophecies or विजन, आइडिया जो आपके हैं वो सारे प्रोडिक्शन में आते हैं। अब देखिए मैं आपसे एक लफ्ज़ बोलता हूँ बुक, तो आपके माइंड से इसमें रिलेटेड जो वर्ड्स इसके साथ रिलेशन, आपके इसके एसोसिएटिव वर्ड्स जो जो रिलेटेड वर्ड्स आएंगे वो क्या आएंगे? स्टूडेंट, क्योंकि बुक स्टूडेंट से रिलेटेड होती है। टीचर, स्कूल, ठीक है। और क्या आएगा बुक से रिलेटेड? टेबल, किसी टेबल पे पड़ी हुई है। और क्या आएगा? लाइब्रेरी, ठीक है। और क्या आएगा? क्लास, bag, pencil, बैग, teacher, student, पेंसिल, वेरी class, गुड, school, क्लास जो भी है, study. कॉलेज, स्टडी। और भी कुछ सोचते जाएं, ये आपके सारे मेंटल लेक्सिकॉन्स हैं। और मीन टू से इस तरह ब्रांचेस निकलती जाएंगी और ये लेक्सिकॉन्स जो हैं मेंटल लेक्सिकॉन्स बनते जाएंगे। दूसरे लोग, कुछ लोग इसको कहते हैं ये मेंटल डिक्शनरी भी होती है। मतलब वट एवर डिक्शनरी ऑफ अ लैंग्वेज यू हैव इन योर माइंड, इट इज़ योर मेंटल लेक्सिकॉन्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टोटल स्टॉक ऑफ द मार्फीम्स इन आ लैंग्वेज। इसको क्या कहते हैं? मेंटल लेक्सिकॉन्स कहते हैं। और जो मेंटल लेक्सिकॉन का मतलब क्या है कि आपके माइंड में कितने लैंग्वेज की मानी, सब्स्टिट्यूशन, रिलेशन, उसके रिलेटेड वर्ड्स या उसका स्टॉक मौजूद है। दिस इज़ योर मेंटल लेक्सिकॉन्स। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है। मतलब एक वर्ड है हमारे पास ईट, मैंने आपसे बोला, ठीक है। अब ईट से रिलेटेड जो मेंटल लेक्सिकॉन्स जो बनेंगे आपके माइंड में, देखें ईट से मतलब ईट्स। सबसे पहले यहाँ पे कोई वर्ड लेते हैं, मतलब फ़िश को ले लेते हैं। ये फ़िश एक वर्ड, ठीक है। फ़िश से रिलेटेड क्या बन गया? फ़िश क्या कर सकती है? सैल्मन फ़िश होती है, हमने पढ़ा था। शार्क होती है। फिर आगे सैल्मन जो है उसके फिर कलर होते हैं आगे, यानी एक बनेगा तो उससे आगे फिर मेंटल लेक्सिकॉन उसका बन जाएगा। क्या? इज़ पिंक होता है, वो एडिबल यानी उसे खा सकते हैं। शार्क जो है बिग फ़िश होती है। ईट मीट, वो ईट्स मीट, हम उसका मीट खाते हैं। बर्ड जो है, बर्ड से रिलेटेड क्या है? यानी उसके विंग्स होते हैं, उसके फीदर होते हैं। कैन फ्लाई, इज़ येलो। और कैनरी और पिंगुइन्स एंड उसके कांट फ्लाई और कांट स्विम्स एंड कैन सिंग। और उसके बाद ब्रीथ्स, एनिमल्स जो है वो क्या खाता है? एनिमल को अगर ले लें, वो ब्रीथ करता है, कैन मूव। और उसके बाद आगे एनिमल की आगे फ़िश है, फ़िश की ये जिल्स है। और उसके बाद कैन स्विम और हैज़ फिन्स। और इस तरह एक आइडिया से रिलेटेड आगे आगे जो बनते जाते हैं, इट इज़ योर मेंटल लेक्सिकॉन्स। And today we are going to study this mental lexicon. How can we form mental lexicons, and how we can get maximum lexicons in our minds. What is the vocabulary and what are the sources of mental lexicons? What is a part of speech? Noun, verb, adjectives. What are the content words? What are the functional words? And how these are helping to form further mental lexicons, and talk about the compoundings, and we'll be talking about the compounding and clubbing and clipping and removing certain word derivations. So all we'll be studying in today's lecture. Let's see one by one. Definition of the lexicons. इतना मुश्किल नहीं है, मतलब आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया। अब आपको खुद ही ऐसे लग रहा होगा कि सर ये तो मैं खुद भी कर लूँगी। अब जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा ये आपको समझ आती जाएगी। डेफिनेशन ऑफ द लेक्सिकॉन्स देखें, सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स एंड इडियम्स ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी वो सेट, वो पूरा स्टॉक, जो पूरा स्टॉक सेट ऑफ इडियम एंड ऑफ एनी लैंग्वेज, तमाम वर्ड्स और उसके इडियम किसी भी लैंग्वेज के, वो क्या है? लेक्सिकॉन्स हैं। The mental system which contains all the informations a persons know about the words. According to the psycholinguist, यानी ये किस में आएगा? मेंटल लेक्सिकॉन जो स्टडी है किसके अंदर आएगा? फिर साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर आएगा। ठीक है, आपके कोर्स में जस्ट ये लिखा होगा साइकोलिंग्विस्टिक, सोशियोलिंग्विस्टिक। उसने आगे आपको कोर्स जो है बस साइकोलिंग्विस्टिक आपके कोर्स में दे दिया। अब वो कोई भी उठा के आपको क्वेश्चन दे सकता है साइकोलिंग्विस्टिक। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ना, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी, इनका कोई ये डिफ़ाइन नहीं करते कि यहाँ से यहाँ तक पूछेंगे। मतलब साइकोलिंग्विस्टिक दे दिया, उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के, लेट्स सपोज वो कहे डिफाइन लेक्सिकॉन्स, मेंटल लेक्सिकॉन्स।
अब जिसने ये नहीं पढ़ा होगा वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे तो, हालांकि उसे आता है, वो सारा दिन मेंटल लेक्सिकॉन्स को ही यूज़ करता है और सारा दिन वो जानता है कि एक वर्ड के साथ दूसरा एसोसिएट करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, सो वन सो फोर्थ, हमारी माइंड के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। यानी हम बहुत सारी चीज़ें जो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में ये सब कुछ पड़ा हुआ है, मेंटल लेक्सिकॉन्स। मैंने आपको बताया था ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हम स्टडी किसकी कर रहे हैं साइकोलिंग्विस्टिक की ही ये स्टडी कर रहे हैं। मेंटल systems which contains all the information of the person know about world, यानी मेंटल सिस्टम इंसान का, और जो वो सारा लफाज के बारे में जानता है। ये किससे, जैसे फिश ईटेबल है, उसे खाया जा सकता है, एडिबल है। फिश जो है वो क्या है, स्विमिंग करती है, पानी में तैरती है। आगे फिश की इकसाम होती है, कौन सी फिश होती है, एक सैल्मन फिश होती है, पिंक उसका कलर होता है, खाने के लिए इस्तेमाल होती है। शार्क होती है, उसका कलर क्या होता है, वो किस तरह की होती है, खाने के लिए इस्तेमाल होती है, एनिमल है। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट आपसे कहूँ खाना है, ठीक है, सुबह का खाना है, लाइट होता है, उसमें ब्रेड होता है, उसमें एग होता है, ठीक है। वो कैसे हम बनाते हैं, कुकिंग, ऑयल और सारा कुछ आगे आगे बनते जाते हैं। दीज आर योर मेंटल लेक्सिकॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू द साइकोलिंग्विस्ट, पीपल्स